السلام علیکم بھائی. یار میں آپ کو کیا سلام بولوں, آپ تو اسلام کے دشمن ہو بھائی. سلام تو کیا ہے, آداب بولو, نمستے بولو, رام رام بولو. وسلم کے شان میں گستاخیاں کیے جا رہے ہو, بدتمیزیاں کیے جا رہے ہو, ہمارا دل دکھ رہا ہے یار, ہم کچھ کر نہیں سکتے, بے بس ہے. آپ کا دل تو دکھنے کیا پہ کروں گے کیا بھائی آپ؟ نہ بھائی, آپ کا دل دکھنے پہ میں آپ کے ساتھ سنیں تو صحیح ہے. مطلب ایسا حسن رضا صاحب, اچھا سن لیا نا, سنیں تو ایک سیکنڈ چپ تو رہیں, ایک سیکنڈ سنیں تو. آپ کا دل دکھانے کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, لیکن ہم جو بول رہے ہیں وہ تو بولنا بند نہیں کر سکتے. سوری. چلے حسن بھائی آپ بولے, آپ کیا کہتے ہیں, مولوی غلط ہے یا آپ غلط ہیں؟ یار مولوی کوئی فرشتہ تھوڑی ہے یار, مولوی صحیح بول رہا ہے. اب اسلام کے بہت سارے فالوورز ہیں, اب ہر کسی کی الگ الگ تھنکنگ ہو سکتی ہے. کوئی اب اسلام میں فروئی معاملات بہت سارے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اب کی ہر کیا مولوی تھنکنگ ہے, مولوی غلط ہے نا؟ آپ کی کیا تھنکنگ, مولوی غلط ہے نا؟ ابھی جو بول رہے ہیں ان میں 36,000 مردوں کی طاقت ہے. کہ دیکھیں عام آپ انہیں ہمارے جیسا عام انسان سمجھ رہے ہیں, اللہ پاک نے انہیں میں نبی ان کی بنایا. بات نہیں کر رہا, میں اس مولوی کی بات کر رہا ہوں. اس مولوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح یار یہ ہو کیسا, سکتا ہے, صحیح بول رہا ہے, غلط بول رہا ہے؟ ایک دو بار میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی, پہلے یو ایس کا کوئی مولوی ہے, ہمیں نہیں پتا. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بارے میں ان لوگوں نے, اب جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنی کہانیاں سنانے تو یہ لگ غلط جاتا بول رہا ہے, یو مین یہ غلط بول رہا ہے؟ مے بی چیز نہیں ناٹ شیور, ہوتی. ہو سکتا ہے صحیح بول رہا ہوں. اس کا مطلب مے بی کا تو مطلب یہ ہو سکتا ہے صحیح بول رہا ہوں. دیکھیں میں صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا, ہم ایک صحیح عام غلط کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن اور آپ کو سوری صحیح غلط کا ہی جواب دینا پڑے گا. آپ صحیح سمجھتے ہیں اس مولوی کی بات کو یا غلط سمجھتے ہیں؟ یار دیکھیں اس کے پاس کوئی لاجک, اس نے کوئی حدیث بتائی آپ کو؟ میں نے تو صرف آپ کی گفتگو سنی. آپ اس کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ جو اس نے یہ بات بولی ہے, اس نے حدیثوں کی لاجک بھی بتائی ہے, حدیثوں کے ریفرنسز بھی دیے ہیں. وہ آپ کا کام ہے چیک کرنا. وہ ویڈیو چیک کریں, اس میں سے حدیثوں کے ریفرنس تلاش کریں, سب بتایا ہے اس نے. اب آپ بتائیں کہ آپ کا اس مولوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے اپنی طرف سے اس نے سنا رہا ہو کہانیاں. مطلب ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی میں اتنی طاقت نہیں تھی. دیکھیں نبی تو آپ عام آدمی سمجھ رہے ہیں نبی کو, یار آپ عام آدمی تو نہیں ہے. عام آپ کا یہ آدمی میں اور ماننا ایک ہے کہ نبی. مطلب نبی میں اتنی طاقت تھی؟ ابھی ہم اس بات کو سیٹ کر چکے ہیں, وہ مولوی بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے آگے چلتے ہیں. اگر ابھی آپ یہ ویڈیو کر رہے ہیں, آپ معراج کے اوپر ویڈیو کر لیں تو آپ معراج کو بھی نہیں نہیں مان جائیں, سکتے. ادھر ادھر مت جائیں. نہیں احمد, نہیں ادھر ادھر نہیں جائیں. آپ ابھی اس بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم نے اتنا مان لیا ہے کہ مولوی غلط بول رہے ہیں. یہ صحیح ہے, ہم آگے چلتے ہیں اب اس بات سے. ٹھیک ہے, ہم اس بات سے آگے چلتے ہیں. اگر یہ مولوی غلط بول رہا ہے تو اس بات کا لبے لباب یہ نکلا کہ نبی میں پھر اتنی طاقت نہیں تھی جتنا یہ بتا رہے ہیں مولوی. ٹھیک ہے, پھر آپ اس بات سے بھی ایگری کریں گے؟ مولوی اور میں جج نہیں, یہ مولوی اور میں جج نہیں کر سکتے نبی کے اندر دو کتنی نمبری اب طاقت آپ کی نہیں, اب آپ دو نمبری پہ آ گئے. آپ نے اتنا تو تھی. مان لیا کہ یہ مولوی یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اگر وہ بھائی جھوٹ اس کو بول رہا ہے, کیا تو اگر وہ پتا, بات اس کو جھوٹ ہے تو اس کا مطلب کیا نبی کے پتا, اندر اتنی میں طاقت دو نہیں تھی. نمبر پہ نہیں آیا. اس کو کیا پتا, اس کو کیا پتا یار, اس کو کیا پتا. اس کو جو بھی پتا ہے یا نہیں پتا, ہم وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو ہم آگے چل چکے ہیں اس بات سے. اور میری آرگومنٹ بات ہمارا سنیں, آگے بڑھ اگر چکا ہے. آپ کہہ وہ رہے آدمی ہیں, جھوٹ بول رہا ہے. آپ اب کہہ آگے رہے بتائیں ہیں کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو کیا نبی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی؟ میرا نبی تو بہت طاقتور تھا. اس کا تو بس 36,000 بھی آپ صحیح 3600 بول رہے اس ہیں. کا پھر یہ کاؤنٹ مولوی کیسے غلط ہوا؟ پھر یہ مولوی ٹھیک بول رہا کاؤنٹ ہے. نہیں کر سکتے نا, ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا. ہمیں تو اوکے مے بی ناٹ 36,000, مے بی 12,000. اچھا علی بھائی ایک سیکنڈ, علی بھائی ایک سیکنڈ رکیے, تھاؤزینڈ. سوری علی بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا, ایک سیکنڈ. حسن, تو نبی عام آدمی سے بڑا تھا؟ بے شک اللہ کے رسول الگ ٹھیک عام ہے, آدمی سے بالکل. یار بہترین آپ بہترین. ہاں بس یار ٹھیک ہے, سمجھ لیا سمجھ لیا. مجھے بتائیں احد میں انہوں نے 2 ذرہ بختر پہنی ہوئی تھی, پھر بھی ایک بندہ آیا, اس نے ہاں کسور مارا, یہ نبی بہت کے دیر 2 سے دانت آپ باہر کی نکل یہ آئے. گفتگو بھی سن رہا بولیے تھا سر, حکم کہ فرمائیں. علی کو بلایا. علی کو دیکھیں نہیں, ابھی اللہ تعالیٰ محمد کی نے بات کر رہا ہوں. وہ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. علی کو بلانے والی بات بعد میں کریں گے. احد میں محمد کو ایک بندے نے کسون مارا پٹاخ کر کے, اس کے 2 دانت باہر نکل آئے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک یہاں مرد سے زیادہ بشری مضبوط گرا کر. تقاضے انسان تھے پراپر, اللہ نے ان کو طاقت انسان کہاں پہ پیدا تھی کیا. پھر طاقت کہاں پہ تھی ملٹیپل مردوں کی؟ صرف پرائیویٹ پارٹ کے اندر طاقت تھی, نہیں جسم میں نہیں پرائیویٹ تھی. پارٹ بے شک کیوں نہیں تھی. آپ نے دوسری چیز نہیں پڑھی, آپ کو میں ایک حدیث کا ریفرنس نہیں سینڈ کروں. ایک سیکنڈ, آپ نے وہ بندہ دیکھا, وہ آرلینڈ شوالز نیگل دیکھا نہیں ہوا؟ شواز نگر کو چھوڑے, یہودیز نہیں نہیں دیکھا ہوا اس کو خیبر کے دیکھیں یار, خیبر کے سنے یار صبر. آرلینڈ شوالز نیگل کو دیکھا ہوا؟ ہاں بالکل. اوکے, اس کو آپ جیسا بندہ ایک سن مارا, اس کے دانت باہر نکل سکتا؟ نہیں مشکل ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آرنلڈ شوازنیگر کے اندر ایک بندے کی طاقت ہے یا 10 بندوں کی طاقت ہے؟ اگر آرنلڈ کے منہ پہ تیر لگے گا آ کے تو نہیں ٹوٹیں منہ گے. پہ تیر نہیں لگا, تیر ذرہ بختر میں لگا تھا. میں آپ کو دکھا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, سارے ریفرنس ہے میرے پاس. مکتا نہیں ابھی بھائی, اس کے بہت پہاڑ پہ تھے, پہاڑ پہ تھے. منہ کے اندر تیر نہیں لگا تھا, منہ پہ کسون لگا تھا. کسون سمجھتے ہیں؟
जी मुक्का जी, वो लोहे की पांच हाथों में वो लोहे की वो हाँ, फंस गई अब थी मुझे ये भाई, बताइए वो वाला। अब मुझे ये बताइए मोहम्मद में आपने कह दिया कि हो सकता है 36,000 मर्दों की ताकत हो। जिस बंदे में 36,000 मर्दों की ताकत है, वो एक कसून मारने पे नीचे कैसे आ गया? मुझे ये समझाएं। भाई बशरी इंसान, अल्लाह ने इंसान बना के भेजा है ना भाई। ओके, तो इसका मतलब है कि उसकी सारी ताकत सिर्फ प्राइवेट पार्ट में थी, स्पर्म नहीं, स्पर्म के अंदर मौलवी प्राइवेट था। गलत कह रहा होगा, मौलवी गलत कह रहा होगा। क्यों, मैं मौलवी को डिफेंड थोड़ी कर रहा हूँ यार। अभी आपने कहा हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आम इंसान से मुख्तलिफ होता है नबी यार, हम आपकी तरह तो नहीं है ना यार। यार आप आप जब अपने दिल करता है भगवान गेम की चेंज अगर कर कोई, लेते हैं। हैं? जी, आपका कोई दीन ईमान ही नहीं है नहीं क्यों नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। कि जैसे मुसलमान आपका दीन ईमान है ही कोई नहीं। कभी आप कुछ क्यों कहते नहीं हैं, कभी भाई, कुछ कहते हैं। ये आपसे मुझे आपसे थोड़ी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मुझे यार। नहीं, मैंने कब कहा कि आप मुझसे सर्टिफिकेट लें, लेकिन सारी दुनिया देख रही है कि दीन ईमान ही कोई नहीं। कभी कहते हैं हाँ उसके अंदर ताकत थी, वो आम मर्दों जैसा नहीं था। कभी आप कहते हैं मर्द, ये आम मर्दों वाली बात है यार, चोट लगेगी तो दांत यार तो टूटेंगे। क्या था वो, मर्द था, आम इंसान था या नहीं था? बिल्कुल बशरी नूर थे वो। बशरी नूर थे, आम इंसान नहीं बशरी था। नूर। नहीं, बशरी नूर, ये कहानी भी सेट करते हैं इनसे। ये बशरी नूर कहाँ से लिया आपने, कहाँ लिखा हुआ? अब मैं आपको सारे रेफरेंस, मैं आलिम नहीं हूँ यार, मैं आपको आप आलिमों आलिम वाली नहीं है बात है। सर, आप आलिम नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं बशरी नूर भी आपने मुसलमान कहीं हूँ, से नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। नहीं, आप मुसलमान जितनी नहीं मेरी है, नॉलेज है मैं उसके तहत बात कर रहा हूँ। आप मुसलमान भी नहीं है, आप एक कंफ्यूज इंसान है। नहीं, आप कंफ्यूज इंसान होंगे, आप होंगे, नहीं आप नहीं है, आपका मजाक उड़ा रहे हैं यार, आप यहाँ पर क्या गंदी और मजाक उड़ा घटिया रहे बातें क्यों कर रहे हैं? हैं? आपसे इसका, एक इन बातों का शख्स क्या ताल्लुक? एक शख्स है आप मोहम्मद नाम का। मुसलमानों की दिल आजारी कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि मुसलमान हमारी दिलदारी करते हैं। एक शख्स क्या है मोहम्मद मतलब? नाम का, एक शख्स है मोहम्मद नाम का, उसने कहा जो एक्स मुस्लिम हो उसे कत्ल कर दो। उस मोहम्मद क्या? जैसे बगैरत शख्स को हम दिखाएं भी ना कि वो कितना बगैरत था। अस्तगफिरुल्लाह। देखो यार, मुझसे जब तक बात कर रहे हो काइंडली ऐसे बात ना करें, तो मुझे मोहम्मद मुझसे ने आप। तो फिर आप मुझे कुरान में से और हदीसों में से मुर्तदों की सजा खत्म करवा दें प्लीज। किस दिन करवा के आएंगे? मैं आपसे सॉरी भी बोलूंगा और अपनी बात भी वापस लूंगा। नहीं तो यार मुर्तिद, क्या आप इस्लाम में आके इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हो ना यार। अरे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम इस्लाम में पैदा हुए थे, अब इस्लाम छोड़ दिए, हमारी सजा कत्ल हो गई, क्यों? क्यों ये भाई, तो क्या मसला है? क्या किया हमने? हम अब इसलिए कर रहे हैं हाँ कि भाई अगर बोले भी मरना ना, हमने वैसे ही मतलब है, मरना तो हमने है ही तुम लोगों के हाथों, तो क्यों ना हम इस्लाम तो को भी बोले भी तोड़ ना। के मरे, दिखाएं तो सही कि इस्लाम है क्या चवल देखो, इंसान। मैं तो अपना चेहरा भी दिखा रहा हूँ, आपने तो, आप तो छुपे हुए बैठे हुए, मैं तो अपना चेहरा इसीलिए भी दिखा रहा हूँ इसीलिए मेरे छुपा को। हुआ हूं ना, क्योंकि ये आप लो, जैसे लोग मारते हैं ना। ये लो, हाउ आर यू। और बोलो मुन्ना भाई, आप तो भी चेहरा ले लो। दिखा दो, इनकी तसल्ली खत्म हो जाए ताकि। हाँ भाई, और बोलो। आप तो दाढ़ी हाँ रखे भाई, हुए सब कुछ, आप इतना जब इस्लाम को तो समझते हैं तो यहूदी आपने क्या दाढ़ी नहीं किया? रखते? यहूदी नहीं रखते दाढ़ी? मोहम्मद ने दाढ़ी तो चोरी की यहूदियों से। अबे तो नहीं यार, कैमरा ये मैं तो बंद कर रहा हूँ भाई, तो यार, आपके कैमरा दिखाने वाली बात तो आपकी फेल हो गई, तो इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। अब आगे बोलो। मैं कौन सा कोई ऐसा जिहादी हूँ जो मैं आपको मारने पहुंच जाऊंगा यार, यार मेरे आप तुम, दस्तरस में हेलो हो। हेलो 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 हेलो, तुम लोग करते हो अदबुल हयाल और इल्मुल दजाल, ये दोनों इल्म और अदब जो है इस्लाम के अंदर ही है। तुम नहीं करोगे, तुम बच्चे होगे, तुम हिपोक्रेट होगे पे भी, या तुम अनपढ़ होगे, तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, और जिससे कि तुम मूछों को ताव दे रहे हो, तुम प्योर डिफेंसिव पोजीशन में इस वक्त बैठे हुए हो, क्योंकि तुम्हें अंब का पता नहीं है इस्लाम अच्छा, का। ठीक है, अगर पता हो तो तुम इस तरह की बात ना करो। ठीक है, तुम्हारा बॉडी पोस्चर एंड ईच एंड एवरीथिंग इज प्योर डिफेंसिव। तो आपसे गुजारिश है, हमारी वीडियोस देखें अच्छे तरीके से, इस्लाम को समझें, अपने मौलवियों से पूछें और फिर हमारे साथ आके डिबेट करें। मेरा चैनल है एडम सीकर के एक नाम से, एडम आपने मुझे सीकर उर्दू तालीम के दी नाम है, से, मैं 12 हाँ, एडम सीकर उर्दू के सॉरी। नाम से मेरा चैनल है। वहां पे मैंने अभी कल दिखाया था कि फातिमा को आप लोगों ने किस तरीके से जलील किया मोहम्मद की वफात के बाद। ठीक है, एडम सीकर उर्दू चैनल पे जाएं, वो वीडियो देखें, बागे फिदक का वाकया। आप तो और इस्लाम को बदनाम कर आप रहे हो, मुझे बस आपको बताएं कि कुछ नहीं मोहम्मद पता। की बेटी को अगर मोहम्मद के सुहाबों ने इस तरीके से जलीलो ख्वार किया है, फिर भी आप इस्लाम को इस्लाम समझते हैं। मोहम्मद को भी आपने 36 मर्दों की ताकत दे दी, 9 बीवियों के साथ एक ही रात को डिंग डोंग मचा नहीं, रहा है, अभी आप आप मोहम्मद उसे को डिफेंड गलत कर कह रहे हैं यहाँ रहे पे। हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गलत कह रहे हैं, उनकी बेटी को डिफेंड कर रहे हैं, आप कौन लोग हैं? क्या मतलब कौन लोग हैं? हम उसकी बेटी को डिफेंड तो नहीं आप कर रहे, क्या? हम आपको बता रहे हैं कि आपके सुहाबियों ने मोहम्मद की बेटी के साथ किया गया। हमें आप मुझे बोल रहे हैं कि जी भाई, मोहम्मद को कुछ ना कहो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सुहाबियों ने मोहम्मद के मरने के बाद, जब तलवार टूट गई ना मोहम्मद की, मरने के बाद उसकी बेटी के साथ क्या रंगरेलियां की, वो आपको नजर आएगा, ताकि आपको समझ आए कि आपके सुहाबी भी मानते थे कि मोहम्मद कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ बादशाह है। बादशाह गया, गेम नहीं खत्म। ऐसी कोई बात नहीं, बादशाहों की हाँ हुकूमत ठीक है, ये 1500 साल बाद नहीं चलती भाई, कौन से बादशाह समझे? की हुकूमत चल रही है? कौन से मोहम्मद की हुकूमत चल रही है इस वक्त? दिखाएं शरिया कंट्री कौन सी है इस वक्त? भाई इस्लामी मोहम्मद की कुर्सी के ऊपर इस वक्त कौन सा बैठा हुआ है आपका? आप जैसे लोगों को, लिबरल लोगों को तकलीफ अबे हो जाती यार है ना कौन बैठा? इस्लाम की यार बात पूरी दुनिया की 208 कंट्रीज में से एक जगह पे दिखा दो जहाँ पे मोहम्मद की कुर्सी। अफगानिस्तान कौन में बैठा है। है अफगानिस्तान में? कौन सा बंदा है? ये तो जमहूरियत जमहूरियत के रोने रो रहे हैं, खैर वो तो और एक अलग बात है। फिर बाबा जी का ठुल्लू ना,
खिलाफत बाबा जी मैं उस्मानिया सुन लूं? खत्म थी, साजिशें थी। हाँ साजिश खत्म हो गई ना, विद इन 100 ईयर खिलाफतें खत्म हो गई। आप मुझे कह 14 साल लेकिन से खिलाफत चल रही 100 है, ईयर झूठ नहीं क्यों भाई, बोलते हैं? 200 अरे साल भाई हुए, अभी 200 एक साल सेकंड, खिलाफत उस्मानिया खत्म हुए हुए एक यार। सेकंड भाई, एक सेकंड। जब जब अली मरा उसके बाद खिलाफत उस्मानिया किसके पास थी? किसका क्या, दोबारा बोलिए। अली के मरने के बाद खिलाफत उस्मानिया किसके पास थी? इमाम हसन के पास, इमाम हुसैन के पास कब? हसन को तो खिलाफत छुरी दे के उस्मानिया। मरवाया। आपको तो यही पता है। भाई आपको तो यही नहीं पता खिलाफत उस्मानिया है क्या? आप मुझसे हसन के बोल रहे पास हो नहीं आप थी, और 4 बातें आपको पता है, आप मुआविया के बातें पास करिए। थी, मुआविया लेके हाँ बैठ गया था। खिलाफत उस्मानिया थी, खिलाफत थी, वो खिलाफत थी, खिलाफत अबे उस्मानिया। डंगर, वो आप लोगों की एक और कहानी है, मुझे उस कहानी में ना जाओ। जो उस्मानी हुकूमत थी उसकी खिलाफत, खिलाफत उस्मानिया असल में मुआविया के पास थी। ये आप लोगों की चुल है कि नहीं जी हसन के नहीं, पास वो थी। सल्तनत खिलाफत उसके बाद उस्मानिया उस्मानिया कह किसके लो। पास थी? थी, अमीर उसके माविया बाद के किसके पास। पास थी? उसके बाद थी यजीद के पास। यजीद ने क्या किया? मुसलमान कलमा को उसने पकड़ के रगड़ रगड़ के तो मारा इमाम हुसैन को करबला के दौरान, गलत किया ना, रगड़ तो कौन रगड़ के। मुसलमान डिफाइन करता है उसको भाई? कौन सा मुसलमान अरे डिफाइन भाई करता है? ऐसा ऐसा बंदा था कि मैं कहता हूं कि आजकल के लोग कुत्ते को भी ऐसे ना मारे जिस तरीके से उसने इमाम हुसैन और उसके तमाम साथियों को वहां पे रगड़ रगड़ के कुत्ते की तरह रोंदा। तो कौन डिफेंड कर रहा है एग्जैक्टली उस जालिम आदमी को? हम तो उसके खिलाफ हैं। और उसके बाप को रजी अल्लाह अन्हा कहने वाले भी आप लोग, और वो भी मुसलमान कलमा को। मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। डिफेंड कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूं डिफेंड करो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा भाई हूं। हर कोई नहीं दौर में, मानता था मोहम्मद को। हर तरह के लोग, हर दौर में हर तरह के लोग आए हैं अरे दुनिया में कोई यार। नहीं मानता था आपको मोहम्मद पता है को। मुनाफिक थे भाई। कौन मानता था मोहम्मद के मरने के बाद? आधे से ज्यादा लोगों यजीद ने ने तो इस्लाम इमाम छोड़ हुसैन दिया। को मारा, उसने वो उसका बेटा था, उसके बेटा किसका बेटा था? अबू सुफियान यजीद का के बेटा बेटे था। ने अबू खिलाफत भी सुफियान छोड़ कौन दी था इसकी वजह जिसने से। रसूल के साथ खुद जंग की यजीद थी? के बेटे का नाम भी आपको माविया था भाई। यजीद के मैं बेटे आपको का ये नाम बता भी रहा हूँ उसके माविया, बाप का उसने भी नाम खिलाफत यजीद छोड़ का, दिया। यजीद ने मारा इमाम हुसैन को, उसका बाप था माविया, माविया का बाप था सुफियान, सुफियान ने जंग लड़ी खुद नबी के साथ। तो ये तो पूरा खानदान है जो इस्लाम के साथ लड़ता है। तो आप क्या सिखा रहे हो हिंदा, हमें भाई? उसकी बीवी का नाम था हिंदा। हिंदा ने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया। आप जी मुझे नहीं ये बता। पूरा सुभान अल्लाह। खानदान इस्लाम का दुश्मन है सर। तो मुझे बताइए, जो खानदान इतना बड़ा था, जो कि इस तरह का कितना कुत्ता खानदान था, इसके खानदान के माविया को बिठाया किसने हुकूमत पे? बस वो जंग हुई, हजरत अली से जंग की उसने। काबा जंग की? हजरत अली तो हमारे मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर किसने छुरा घोंप के मार दिया अली को नमाज पढ़ाते हुए? क्या बच्चों वाली बात हाँ, करते हो जंग में मारे? यार कम नहीं ऑन जंग यार, में तुम लोगों को दो अपनी जंगे हिस्ट्री नहीं नहीं, पता। 2 जंगे नहीं, जंगे अब जमल और जंगे सिप्पी नहीं। अगे जंगे जमल आयशा के साथ हुई थी, मोहम्मद की बीवी आयशा के आयशा साथ के नहीं। साथ अली लड़ा था। हजरत अमीर मुआविया, हजरत आयशा उसके अंदर शामिल थी, बस तो गई थी और अबे घर डंगर, बाकी। आयशा उसकी लीड थी। वो भाई तमीज से, इधर तमीज से। क्या तमीज से? तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, तुम अबे बीच में भाई यार, अपनी तुम कहानियां बात डालते तो जा रहे हो। तमीज नहीं है, तुम मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ऐसी बातें कर रहे हो। मैं सिर्फ ये देख के आया एकदम चैनल पे। बहरहाल तुम दिल आजारी कर रहे हो एक्स मुस्लिम, तुम लोगों को वाकई में मुसलमान कहलाने का हक ही नहीं है यार। और यार अच्छी मुसलमान बात है, शुक्र है हम नहीं इस कहला हिसाब से रहे ना बाहर हम। निकले भाई। हम कब हाँ कह तो रहे हैं ठीक हम मुसलमान है? है, ये तो अच्छा तुम्हें मुझे भी अब ये बात। बताओ, अब ये देखो अभी बताओ तो कि आप तुम्हारा मेरी कोई कुरान बात जो नहीं है, सुनो। अच्छा हाँ अब एक बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारा कुरान जो है, तुम्हारा जो कुरान है, वो तमाम नॉन मुस्लिमों को हरामी क्यों कहता है? नहीं, कोई नहीं कहता। यार ये आपको किसने कह के नहीं कहता? पता नहीं, आप गिनती चुनती की चुनी बातें आप उसको ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो और बातें करते हो यार। बस यार देखें, बात सुने। आपको पहली बात मुझे बता दें कि आपको ये किसने कहा है कि कुरान तमाम नॉन मुस्लिमों को हरामी नहीं कहता? पहले ये बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। चले, मुझे इल्म नहीं है इस बारे में। जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं बोल सकता, आगे जो मुझे बेहतरीन, पता देखे हो। ना, देखे। अब ये देखा, ये अच्छी बात हुई ना। अब हम एटलीस्ट जो है ना, हम बात कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। अच्छा अब मुझे आप बताएं, कुरान में एक आयत है, ठीक है, और वो आयत आपको कहती है कि जालिका जनीम, इसका क्या मतलब होता है? मुझे अरबी नहीं आती भाई। आपको अरबी नहीं मैं आती? आपके साथ जुड़ गया। अब अगर आप मुझसे इस तरह की, जो मैं आलिम नहीं हूँ, मुझसे इस तरह के सवाल मैं प्रॉपर आपको नहीं जवाब दे पाऊंगा इस तरह के, जिस तरह आप शायद आप जो बातें कर रहे हैं वो इतनी मेरी नॉलेज नहीं हो। जिन चीजों पे आपको कमांड हासिल है, आप उसी के बेस पे वीडियोस करते हैं, उसी से पैसा कमा रहे हैं, तो अरे ये सारी भाई चीजें तो पैसे को मैं छोड़े, तो। हम पैसा, सर ये देखिए, ये देखिए सर, देखिए मैं आपको सिर्फ दिखाना, सर स्क्रीन दिखाएं इनको। ये हमें कहते हैं कि हम मोहम्मद साहब को बुरा कह रहे हैं, मोहम्मद साहब ने हमें और कुरान ने हमें क्या क्या कहा है, तो हम कुछ कहें भी ना। दिखाएं सर स्क्रीन, दिखाएं सर स्क्रीन दिखाएं। हेलो भाई, हाँ जी, ये सर देख हम्म, लिए, कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 68 की आयत नंबर 13 है। क्या है सर? 68 की हाँ आयत नंबर सही। 13 है। यहाँ पे ये कह रहे हैं, इन सब के अयूब के साथ बद असल हैं। बद असल इसे कहते हैं शुगर कोटेड ट्रांसलेशन। शुगर अच्छा कोटेड ट्रांसलेशन को अगर हम अरब के अंदर देखें, कलाम अरब में ये लफ्ज उस
वलुरता के लिए बोला जाता है, दरअसल एक खानदान का काफिर ना हो बल्कि इसमें शामिल हो। क्या ये इतनी लंबी कहानी है? असल गेम बता दो ना, क्या मसला है? इतना मशहूर था कि नाम लेने की जरूरत नहीं थी। चलो इसने उन्होंने फिर उन्होंने उर्दू की गेम डाली, दूसरी को पढ़ लेते। जनीम के मायनी बाद सलफ के नजदीक वल्दतरा हरामजादे के हैं, हरामी, हरामजादा। जिस काफिर की निस्बत आयतें नाज़िल हुई वो ऐसा ही थे, ठीक है? काफिर थे ना, जो उनको क्या कह रहा है कुरान? हरामिया, हरामजादा, ठीक है? आप लोग जो हो, कुरान आपका हमें इतने नामों से पुकारता है, ठीक है? हमें अच्छा, तो हरामी बोल रहा है। एक सेकंड रुके, तो हम कुरान देने वाले को हरामी क्यों ना बोले सर? हम कैसे, देखो कुरान देने वाले का कुरान नहीं, कुरान अल्लाह का की किताब है। नहीं, ये कहीं पे साबित नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक शख्स आया, उसका नाम मोहम्मद था। सुन ले, आपके लिए ना, आपका ईमान है, हमारा तो ईमान नहीं है ना, हमें साबित आप सबूत चाहिए, ठीक है? कौन से चीज को फॉलो करते हैं? आप किसी को नहीं मानते? सुने, कुरान जो है जब आया, देने वाला कौन है? सिंगल पर्सन, मोहम्मद। उसी ने बोला ये मुझे जिब्राइल ने दिया, उसी ने बोला जिब्राइल अल्लाह से लेके आया। लिहाजा हुजूर पाक का उस्ताद कौन था? हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा है, मोहम्मद, जो कि तमाम कहानी हमें दे रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे, कहाँ से आए वो? कहाँ से उनको इल्म मिला? एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास तीसरी कोई हुज्जत ही नहीं है कि ये कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया। अब आपने कहा मोहम्मद का उस्ताद कौन था, चलो चला गया, बाबा जी का ठुल्लू हो गया उसका। नहीं है उनके पास कुछ भी, बेचारे के पास तरस आता है ऐसे लोगों पे। बेबी बॉय है। ऑलराइट गाइस, चलता हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मजा आया, थोड़ी सी खाना हजम हो गई। ओके एडम भाई। ये जो होते हैं ना मेबी वाले लोग, मे बी हाँ। ये जो मे बी है ना, गलत कह रहा हूँ वो, हाँ मे बी गलत कह रहा है, मे बी ऐसा हो सकता है। यानी हर चीज में उन्होंने आप किसी भी एंगल में जाएंगे ना, ये हटेंगे। अब मैंने इसी वजह से हदीस दी थी, मैं सीधा कुरान पे आया था। मैं कहा आप बताना, 3 दफा बीच में से टोका मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बात पूरी करके जाऊंगा बेटा, तू टोक ले मुझे। सोच के तो जाए, कुछ तो अच्छा, लर्न वापस करके आ जाए गए यहाँ हो, पे आया। वापस आ गए हो भाई साहब, एडम भाई वापस आ गए हो। वापस आ गया। चल गया। हाँ जी, हाँ, कुछ लर्निंग हुई है आपकी सर? नहीं कोई मेरी लर्निंग मैं करने नहीं गया था, मुझे पता नहीं कैसे कट गया। मैं इतना अमूमन यूज नहीं करता हूँ यूट्यूब वगैरह। मैं किसी लाइव अच्छा, चैट के अंदर फर्स्ट टाइम आया हूँ, कोई मुझे बात नहीं, इसके बारे में आगे कुछ भी नहीं पता। चले। कुरान के हाँ, बारे में तो आज लर्न किया ना आपने कुछ, कि कुरान हमें काफिरों को हरामी बोल रहा है, ये तो लर्न हुआ आपका। अल्लाह का कलाम है। मैं अरे वो उसके तो बारे मैंने में, पहले कह दिया कि हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास है? आप नहीं माने तो मैं कैसे मनवा सकता हूँ? वही तो सर, एविडेंस पे मानेंगे ना भाई। एक ही बंदे ने कह दिया अल्लाह का कलाम है, मैं मान लूं क्यों भाई? कोई एविडेंस दिया उसने? आप किसको मानते हैं? आप कैसे पैदा हो गए? आप मानते हैं? मैंने पैदा किया आप, पूरी दुनिया, हाँ, मैंने पूरी दुनिया बनाई है। साबित करें। मैंने कह दिया कुन फया कुन हो गई, अल्लाह को साबित करके दिखा दे। जिस तरह आप अल्लाह को साबित करेंगे उसी तरह मैं साबित कर दूंगा कि अल्लाह ने बनाई है। तो मर जाएंगे एक दिन, आपने तो मर जाना है। अल्लाह तो मर चुका है 14 साल पहले का, जैसे ही नहीं, मोहम्मद मरा अल्लाह भी मर गया। हाँ, अल्लाह तो हमेशा से और हमेशा रहने किसने वाला कहा है? किसने कहा? अगर कुरान अल्लाह का कलाम है ना, मोहम्मद के मरने के बाद अल्लाह का कलाम नहीं आया, अल्लाह भी मर गया। अगर अल्लाह नहीं मरा तो अल्लाह का कलाम आप दिखा दे। मोहम्मद के मरने के बाद अल्लाह की एक आयत दिखा दे कोई। यार अल्लाह ने उसमें बता दिया ना कि आप आखिरी नबी, आप किसी नबी को नहीं वही तो भेजेंगे। बात मेरा है, तो मैंने भी बता दिया। मैं सर अल्लाह नबी, आखिरी नबी गोली मारे, इसको कहीं भी आखिरी नहीं लिखा हुआ, ठीक है? सील ऑफ द प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है? सील को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। वंस अगेन, आपने कहा अल्लाह तो जिंदा है, मैंने कहा अल्लाह मर गया, तो कैसे साबित होगा अल्लाह जिंदा है? आप अल्लाह से कहें अभी अभी एडम को आके कोई पैगाम दे दे, कोई सबूत दे दे उसके जिंदा होने का। नहीं, मतलब आप अगर कौन से, आप किसी इस्लाम किसी मजहब को मानते हैं या आप एथियस्ट हैं? मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं सबको मानता हूँ। और बताएं, इट डज नॉट मैं मैटर मेरा एट दिस मोमेंट, इट डज नॉट मैटर की मैटर। बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं व्हाट उसी हिसाब मैटर्स से इज, पूछ नहीं, व्हाट मैटर्स इज कि आपने अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट करना है, आप वो प्रेजेंट करें। आप मुझे ये मत बताएं जमीन किसने बनाई, कहां से आई। भाई मैंने सिंपल सवाल किया है, साबित ये करना है कुरान अल्लाह का कलाम है, वो साबित करें। देखिए, मैं नहीं साबित कर सकता। राइट, एग्जैक्टली, दैट इज वाई ये हुज्जत नहीं बनती। इसी वजह से ये चीज कभी हुज्जत नहीं बनती। तो आप गलत हुज्जत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिंग तो समथिंग बेटर। सारी चीजों को एक तरफ रखें, आप एक तरफ रखें। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी नाज़िबा आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि देखे 3 भाई, इंच का और ये और वो, देखे तो भाई, ये सुन बात ले, सुन ले, सुन ले। देखिए एक आप, शख्स, ये गलत। एक शख्स जो लड़कियों को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स फरमाता था। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। निकाह एक हुए हैं, सेकंड, कोई ऐसी अरे बात नहीं भाई है। और एक सेकंड, अगर आपको नहीं पता ना सर, सिर्फ आज ये इल्म ले ले और अपने स्कॉलर से पूछ के आए।
स्लेव के साथ निकाह फरमाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मारिया मैं किप्तिया, आपसे दोबारा अगर मैं थोड़ी नॉलेज लेके दोबारा आपसे राब्ता करूं, कैसे होगा? सर आप, मेरा चैनल है, हर सैटरडे को होता हूं मैं रात 9 बजे के बाद। मैं आपको बता देता हूं, मारिया किप्तिया मोहम्मद की एक कॉन्क्यूबाइन स्लेव गर्ल थी। उसके अलावा मोहम्मद के पास 4 और स्लेव औरतें थी। मोहम्मद साहब उनके साथ डिंग डोंग फरमाते थे। मैं सेक्स इसलिए नहीं कह रहा, आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बड़ी मेहरबानी, उसके आगे बाद समझ में। उसके बाद आपके 11 बीवियां उन्होंने रखी हुई थी। उसके अलावा 9 साल की बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स फरमाया 53 साल की उम्र के अंदर, ठीक नहीं, है। आपके शिया हज़रात तो कहते हैं कि 9 साल की उम्र नहीं थी। शिया हज़रात वही कहते हैं ना, बात मैं तो, अरे शिया हज़रात कहते हैं ना, मैं तो नहीं शियों को मानता ना, मैं तो सुन्नी था ना। तो मेरे कौन से मुताबिक देवबंदी या अहले सुन्नत? अहले सुन्नत वल जमात, मेरे मुताबिक 9 साल की बच्ची के साथ हजूर ने 53 साल की उम्र में, बाबा जी ने 9 साल की बच्ची, इसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड में पीडोफाइल कहते हैं, पीडोफिलिया, पीडोफाइल, द पर्सन इज पीडोफाइल। और वेस्ट में इस बंदे को जेल में डाल दिया जाएगा, और उस इलाके में, जिस इलाके में रहता है, उस इलाके में कभी कोई घर नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो इलाका अच्छा, खराब कर तो दिया ये तो अब जाएगा। कानून बना है ना, अब ये 1500 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 1500 साल पीछे, 1500 मोहम्मद की साल जिंदगी की सुन्नत, मोहम्मद की सुनते जो हैं 1500 साल पहले खत्म हो गई थी, राइट। दे आर नॉट फॉर इटर्निटी, सुन्ना इज नॉट फॉर इटर्निटी। पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं? मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर भी पिछले दिनों सिंध में एक बंदे ने शादी की थी ना 13 साल की बच्ची के साथ। AR न्यूज वाले उसकी तरफ गए थे, क्या उसने जवाब दिया था? उसने कहा था, हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की हजरत आयशा के साथ शादी की, जब वो 53 साल के थे। ये मेरी बच्ची जो है, इसकी उम्र तो 13 साल है, मैं अभी सिर्फ 65 साल का हूँ। दोबारा AR वाला बंदा कभी घुसा नहीं उसके पास, न्यूज ही वहीं पे बंद हो गई थी, उसके बाद कभी गए नहीं। काम आज भी हो रहे हैं देखिए, ये वाले। बालिग लड़की से इजिप्ट शादी के की जा अंदर, सकती है। इजिप्ट के अंदर, बालिग इजिप्ट लड़की के से शादी अंदर, की जा सकती है भाई। हाँ बालिग लड़की, भाई मैं कहता हूँ बालिग लड़की इजिप्ट के अंदर, अभी वो बालिग लड़की बताता हूँ, 9 साल की बच्ची के साथ 25 साल के लड़के ने शादी की, 3 दिन में मर गई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। बालिग लड़की, ये कुतुपना हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया, उसकी वजह से आज तक लड़कियां मर रही हैं। आप मुझे डिफेंड करने आए हैं उनको? ऐसी बातें कर रहे हैं सर। मैं कौन होता हूँ डिफेंड करने वाला उनको? मैं तो भाई उनका तो उम्मती सर हूँ, फिर मैं लर्न वो करें, डिफेंड कर फिर लर्न करें एंड गेट आउट ऑफ दिस। चले, आप करते रहे बातें, मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे जुड़ूंगा। सर आप बिल्कुल जुड़िएगा, आप लर्न करें इन चीजों को और देख के आए कि मोहम्मद साहब वाज ए, अब सुन लीजिएगा तसल्ली से, ताकि आप रिसर्च कर सकें। अगर ठीक है। आप एक स्लेव लड़की के साथ सेक्स करेंगे तो हम उसे रेपिंग कहेंगे, बिकॉज वो स्लेव है, शी कैन नॉट डिफेंड हरसेल्फ, ठीक है। अगर अब की आप बात 9 करिए ना, साल, उस टाइम पे कानून ये सब तो तमाम लोग भाई गुलाम थे। मोहम्मद ने अलाउ किया ना, उसने रोका तो नहीं ना। उस टाइम तमाम स्लेवरी लोग सुने, आपके हाँ आबा और अजदाद जिन्हें आप, स्लेवरी रोकनी चाहिए थी ना मोहम्मद को और कुरान को। मुझे कुरान की एक आयत खत्म दिखा किया दे ना। जहां पे स्लेवरी रुकी हो। उसके बाद खत्म हो गया गुलाम वाला सिस्टम या नहीं? किसने कहा है? हजरत उमर के गुलाम, उस्मान के गुलाम, अली के गुलाम। अली तो गुलाम लेके आ रहा था रास्ते में, गुलाम के साथ डिंग डोंग भी फरमा लिया। मोहम्मद है, कोई बात नहीं, खुमस के अंदर इसका हक बनता है। भाई गुलामियत तो चलती रही, सऊदी अरबिया गुलामियत सिर्फ 40 साल पहले खत्म हुई है, UN की पुश करने की वजह से। गुलामियत तो चलती रही आज तक। भाई तो यूएस आपको में भी इल्म थी। नहीं है, अगर आपको इल्म नहीं है तो ये मत कहे कुरान की एक आयत नहीं है जो स्लेव्स को खत्म करे, एक आयत नहीं है। ये कहा हुआ है तुमने रोजा तोड़ लिया गुलाम आजाद कर दो, भाई गुलाम होगा तो आजाद होएगा ना। तुमने फलाना काम कर लिया गुलाम आजाद कर दो, गुलाम होएगा तो गुलाम आजाद होएगा ना। फिर क्या हुआ जनाब, फिर लड़ाई हुई, फिर लड़ाई हुई, आप फिर गुलाम बना लिया आपने, फिर लड़ाई की, फिर गुलाम बना लिए, फिर लड़ाई की, फिर गुलाम बना लिए। गुलाम तो रहे हैं आपके पास हर वक्त। देर वॉज नॉट अ, बल्कि मोहम्मद ने अपनी बीवी के साथ नाराजगी का इजहार किया, उसने कहा तूने गुलाम आजाद क्यों किया, अपने चचा को दे देती, ज्यादा बेहतर था, तुझे ज्यादा सवाब मिलता। मोहम्मद सही हदीसों के अंदर बोल रहा है, तू आजाद करने की बजाय अपने चचेरे मामू को दे देती, सॉरी चचेरे भाई को दे देती तो ज्यादा बेहतर था। तो आजाद करना बेहतर है या चचा के भाई को देना बेहतर है? सर अपने उलमा से जाके पूछे, आपको गलत पढ़ाया गया है। मैं सारी उम्र पाकिस्तान में रहा हूँ आप ही की तरह। कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ से? अब ये सारा तो नहीं बताऊंगा ताकि आप लोगों के भाई कत्ल करने आ जाए। नहीं नहीं भाई, मैं कौन सा आपके एड्रेस मांग रहा हूँ? मैं तो पूछ रहा हूँ कराची, बता दिया ना, पंजाब, छोड़ दे जहाँ पे भी, इररेलेवेंट, पंजाब से आपकी आवाज से मतलब इररेलेवेंट। कल पंजाब मैं से लग रहा छोड़ देना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सारी उम्र ये होता रहा, हमें बताया गया गुलामी आजादी, गुलामी आजादी, जब पढ़ा तो पता लगा नहीं, झूठ है, सरासर झूठ अच्छा, है। अहमदी भी नहीं है आप? मेरा दिमाग खराब है, अहमदी होता, कैसे पागल सवाल था मैं। पूछ रहे हो यार? नहीं, उसको मुझे शक हो रहा है, उसको कभी उसको यकीन नहीं आ रहा कि एक सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात वाले ने इस्लाम को छोड़ दिया है। उसको यकीन नहीं आ रहा, उसका दिमाग फट रहा है। अरे भाई हमारे चैनल पे आए, आपको पता लगे कितने एक्स मुस्लिम बैठे हैं यहाँ पे। एडम सीकर उर्दू, एडम सीकर उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पता लगे कितने एक्स मुस्लिम बैठे हुए हैं।
ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, بارشوں کی طرح آتے ہیں. چلے پھر ابھی تو میرے سونے کا ٹائم ہے, پھر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ جڑوں گا. اوکے سر, شکریہ جڑنے کے لیے. ٹیک کیئر برادر.